للہ سبحان اللہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ سبحان اللہ صاحب التاج والمعراج سبحان اللہ سید الانس والجنات سبحان اللہ محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار سبحان اللہ إذ يقول لصاحبه لا تحزن وفي مقام آخر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وفي مقام آخر واذكروا في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا سبحان اللہ آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أنا وأبو بكر وعمر خلقنا من تربة واحدة وفيها ندفا وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جس کو صدیق ذات خدا نے کہا سبحان اللہ اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، جس کو صدیق سب اولیاء نے کہا اور صدیق ہی مرتضیٰ نے کہا،
ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے۔ اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا۔ بہرحال بے دھڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصف گھر دیا، پر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تلا کے دھر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں ایک دن ظلم کے چہرے کو آخر نوچ ڈالوں گا، میرے ہاتھوں میں جگنو ہے، اندھیرا کچھ نہیں کہتا۔ تلا تم خود بخود بے تاب رہتا ہے سلامی کو، اگر تیراک اچھا ہو تو دریا کچھ نہیں کہتا۔ سبحان اللہ۔ میرے واجب الاحترام قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام، شعراء کرام، قراء حضرات، طلباء کرام، عمائدین علاقہ، معززین شہر، حاضرین و سامعین، بزرگان دین اور نوجوان دوستو، بالخصوص عالم بعمل، پیکر اخلاص و سادگی، استاد العلماء، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالرحمن جامی صاحب و دیگر انتہائی معزز علماء کرام، آج 7 فروری سن 2020 کو آپ حضرات کے اس علاقہ محمود کوٹ شہر میں برادر مکرم حضرت مولانا حسن معاویہ صاحب کے اس دینی ادارہ میں سالانہ جلسہ کے موقع پر حاضری کا اتفاق نصیب ہوا ہے۔ دعا ہے کہ رب العالمین اس ادارے کو جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچائے، آمین۔ اور اللہ رب العزت صبح قیامت تک اس کو سرچشمہ ہدایت بنائے، آمین۔ سارے آمین کہہ دیں۔ آمین۔ میں کچھ عرصے کے بعد یہاں حاضر ہوا ہوں، لیکن آپ میں سے اکثر حضرات میرے انداز گفتگو سے واقف ہیں، میرے ذوق خطابت سے آشنا ہیں۔ ماشاءاللہ۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں زندہ دل آدمی ہوں ماشاءاللہ۔ اور زندہ دل مجمع چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بازوق آدمی ہوں اور بازوق مجمع چاہتا ہوں۔ ہنستا مسکراتا آدمی ہوں اور ہنستا مسکراتا مجمع چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے اگر مجھے سننا ہو تو پھر آپ کے چہروں پر کوئی تھکاوٹ، کوئی اکتاہٹ، کوئی گھبراہٹ، کوئی مرجھاہٹ نظر نہ آئے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ بلکہ اتنا کھل کے اور کھل کے بیٹھو کہ تمہاری جبینوں پر ستاروں کی جگمگاہٹ نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ میں لمبی چوڑی تقریر کا عادی نہیں ہوں، کوشش کرتا ہوں کم بولوں پر کام کا بولوں، واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور جو مجھے ذوق سے سنتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ میں ٹو دی پوائنٹ بولتا ہوں، موضوع سخن سے میں ذرا بھی ادھر ادھر نہیں جاتا۔ سبحان اللہ۔ میں موضوع کے سمندر کی لہروں پہ تیرتا ہوں اور پھر اس سمندر میں غوطے کھاتا ہوں، بڑی گہرائی تک جاتا ہوں، واہ واہ، ہیرے اور موتی اٹھاتا ہوں، تمہارے دامن میں سجاتا ہوں، دیوبند کا عقیدہ بتاتا ہوں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لیکن وہ کرتا تب ہوں جب سامنے بھی زندہ لوگ بیٹھے ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں جو موضوع مجھے دیا گیا اس موضوع پہ کوئی آپ کے دل کے دروازے پہ دستک دے سکوں تو ایک تو پوری توجہ میری طرف،
और दूसरा जरा खिलखिला कर बैठे, थके टूटे चेहरे नजर नहीं आने चाहिए। मैं बहुत मुख्तसर बोलूंगा और आपको पता है कि मेरा जो पौना घंटा 50 मिनट मैंने बोल रहा होता है वो 2-3 सांसों में पूरा हो जाता है, क्योंकि मेरी तकरीर बायर होती है। मैं कोशिश करता हूं कि कम वक्त में भी बहुत सारा बोल जाऊं। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसलिए जब भी मेरे दिल की कोई बात आपके दिल के दरवाजे पे दस्तक दे तो फिर कंजूसी नहीं करनी, दरवाजा खोल के कहना है सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, आशिकों वाली कहो सुभान अल्लाह। ये भी चूरी वाले मजनू की है, वो नहीं, देवबंद वाली कहो सुभान अल्लाह। मुजावरों वाली नहीं, मुजाहिदों वाली कहो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, मुझे मौलाना हसन मुआविया साहब ने हुक्म दिया है कि मैं आज तुम्हें सिद्दीक अकबर के सर के ताज के हीरों की चमक दिखाऊं, क्योंकि जुमादिया सानी का माह मुकर्रम है और खलीफा बिला फसल यार गारे पैगम्बर रफ़ीक मज़ार पैगम्बर रफ़ीक हिजरत मुसद्दिक़ मेराज जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर की वफ़ात का महीना है। और आजकल टीवी पर, मीडिया पर कुछ आंटियां भी सरगर्म हैं जो सिद्दीक अकबर पे दबे लफ्जों में तबर्रा करती हैं टीवी पे बैठकर। तो हमारा हक बनता है कि वो अगर तबर्रे से बाज ना आए तो हम सिद्दीक की अजमत का परचम क्यों ना लहराएं। इसलिए पूरी तवज्जो रहे। मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसर वक्त में मैं सिद्दीक अकबर की अजमत को सलाम अकीदत पेश करूं और गुफ्तगू की इब्तदा इस जुमले से करना चाहता हूं कि एक रात का सन्नाटा था, रात की तारीकी थी, रात की जुल्मत थी, रात का अंधेरा था, रात की स्याही थी, रात की तन्हाई थी, रात की खलवत थी, रात की रानाई थी। और तैयबा, ताहिरा, जाहिदा, आबदा, अतीका, अफीफा, उम्मुल मोमिनीन जनाब सैयदा आयशा सिद्दीका, सब कह दो रजी अल्लाह तआला अन्हा, अल्लाह के पैगंबर के कदमों में बैठी है। अचानक आसमान की तरफ नजर पड़ी। पूरी तवज्जो चाहूंगा मौलाना हसन मुआविया समेत। आसमान के ऊपर जब तैयबा कायनात की नजर पड़ी तो तैयबा कायनात ने देखा कि आसमान पर सितारे चमक रहे हैं। अचानक तैयबा कायनात की नजर आसमान पर पड़ी तो तैयबा कायनात ने देखा कि आसमान पर सितारे जगमगा रहे हैं। आसमान पर सितारे झिलमिला रहे हैं, तिलमिला रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, चमक और दमक रहे हैं, चहक और महक रहे हैं। तो तैयबा कायनात ने पूछा, अल्लाह के पैगंबर, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, मुझे ये तो बताएं कि ये जो आसमान पे सितारे चमक रहे हैं, इन सितारों की तादाद क्या है। तो अल्लाह के पैगंबर ने, पूरी तवज्जो से एक जुमला कह के आगे गुजरना चाहता हूं, अल्लाह के पैगंबर ने यह नहीं कहा आयशा मैं आलिमुल गैब हूं अभी बताता हूं कितने हैं, बल्कि तारीख कहती है, शेर की किताबें कहती हैं, रिवायात में आता है कि अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया आयशा वल्लाहु आलम अना ला अदरी, मैं नहीं जानता कि इनकी तादाद क्या है, ये सिर्फ मेरा रब जानता है। लेकिन हाँ, मेरा एक आइडिया है, मेरा एक गैस है, मेरे एक विजदानी कैफियत का इज़हार व तख़य्युल व तसव्वुर है कि ये सितारे ला तादाद हैं, बेशुमार हैं, अनगणित हैं। अगर कोई इंसान इनको गिनना चाहे वो गिनते गिनते थक सकता है, मर सकता है, हिंसों का निजाम खत्म हो सकता है, कैलकुलेशन का निजाम फेल हो सकता है, कंप्यूटर जवाब दे सकते हैं, लेकिन कोई इंसान इन सितारों की तादाद को शुमार नहीं कर सकता। तो तैयबा कायनात ने जवाब पे फिर सवाल कर दिया कि अल्लाह के पैगंबर, अगर ये सितारे लातादाद हैं,
बेशुमार हैं, अनगिनत हैं। फिर मुझे ये तो बताएं कि आपकी पूरी उम्मत में, आपके पूरे असाब में, आपकी पूरी जमात में, आपकी पूरी आल में, आपके सारे यारों पैरोकारों, हुबदारों, जानिसारों और प्यारों में कोई ऐसा भी है कि जिसकी नेकियां आसमान के सितारों से भी ज्यादा हो? तो अल्लाह के पैगंबर ने, पूरी तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह के पैगंबर ने फिल बदी जवाब दिया। अच्छा, फिल बदी जवाब दिया, सोचो विचार करके नहीं, इधर उधर देख के नहीं, सर खुजा के नहीं, अल्लाह के पैगंबर ने फौरन जवाब दिया, हाँ आयशा, मेरे यारों में, मेरे प्यारों में, मेरे वफादारों में मेरा यार उमर बिन खत्ताब वो मुकद्दस इंसान है कि जिसकी नेकियां आसमान के सितारों से भी ज्यादा है। तैयबा कायनात ने जब जवाब सुना, मोहर बलब हो गई, सुकूत और सन्नाटा छा गया, खामोशी तारी हो गई। अल्लाह के पैगंबर तो चेहरा शनास थे। हुजूर ने तैयबा कायनात के चेहरे के खदोखाल को पढ़ा, पूरी तवज्जो, चेहरे के खदोखाल को पढ़ा तो अल्लाह के पैगंबर समझ गए कि आयशा सिद्दीका मेरे जवाब से मुतमईन नहीं हुई। हुजूर ने पूछा, आयशा खैरियत, क्या हुआ? मेरे जवाब के बाद तेरे चेहरे पे हंसी की किरण रक्सा नहीं हुई? आयशा क्या हुआ? मेरे जवाब के बाद तेरी जबीन पे इज़हारे मुसर्रफ नुमाया नहीं हुए? आयशा क्या हुआ? मेरे जवाब के बाद तेरे चेहरे के खदो खाल पे मैंने इज़हारे इत्मीनान नहीं देखा? वजह क्या है? तू मेरे जवाब से खुश नहीं हुई? तो तैयबा कायनात ने कहा, अल्लाह के पैगंबर, आज मेरी एक बहुत बड़ी गलत फहमी दूर हो गई। हुजूर ने पूछा, आयशा वो कौन सी? तो तैयबा कायनात ने कहा, अल्लाह के पैगंबर, मैं तो आज तक ये समझती थी कि शायद आपकी पूरी उम्मत में, आपके पूरे असाब में, आपकी पूरी जमात में, आपके सारे यारों पैरोकारों, हुक्मदारों, जानिसारों में मेरा बाप अबू बकर सबसे आगे होगा। इबादत में अव्वल, इताअत में अव्वल, रियासत में अव्वल, तिलावत में अव्वल, जज्बे में अव्वल, ईसार में अव्वल, कुर्बानी में अव्वल, मोहब्बत और मुरब्बत और चाहत में अव्वल, इश्क और विजदानी कैफियत में अव्वल। लेकिन आपने मेरे बाप अबू बकर का नाम नहीं लिया बल्कि उमर बिन खत्ताब का नाम लिया। तो मैं आज समझ गई कि उमर मेरे बाप से आगे निकल गया और मेरा बाप अबू बकर उमर से पीछे रह गया। तो महमूद को उठवा लो, पैगंबर का जवाब सुनो, तुम्हारा ईमान ताजा हो और तुम्हें अज़मत सिद्दीक के मीनारों की बुलंदी का अंदाजा हो। पैगंबर ने कहा, आयशा आयशा आयशा, तूने ये पूछा है कि सितारों से ज्यादा नेकियां किसकी है? तूने ये तो नहीं पूछा कि सारों से ज्यादा नेकियां किसकी? आयशा, तूने ये पूछा है कि सितारों से ज्यादा नेकियां किसकी है? तूने ये तो नहीं पूछा कि सारों से ज्यादा नेकियां किसकी है। अगर तू मुझसे ये पूछती कि सारों से ज्यादा नेकियां किसकी है, तो फिर ज़बान मोहम्मद से सुन, फरमान मोहम्मद से सुन, विजदान मोहम्मद से सुन, ऐलान मोहम्मद से सुन, बयान मोहम्मद से सुन, कलाम मोहम्मद से सुन कि उमर की सारी उमर एक तरफ। आयशा, उमर की सारी उमर एक तरफ तेरे बाप की हिजरत वाली एक रात का मुकाबला नहीं कर सकती। इस मकाम पर मैं उलमा से, खुतबा से, शुआरा से, आले ज़ौक़ से, आले उमुक से, आले दिल से, आले नजर से, आले फिक्र से कहा करता हूं कि कभी खलवत में बैठकर रात की तन्हाई में सोचना तो सही कि अल्लाह के पैगंबर ने कितना बड़ा जुमला कह दिया। खतीब तो इस जुमले पे हवा की तरह गुजर जाता है। कभी डीप में जाओ तो सही, गहराई में जाओ तो सही, गोतासन हो तो सही, अमीक निगाहों से, नजरों से, नजर गायर से गौर तो कर कि अल्लाह के पैगंबर ने कितना बड़ा जुमला कह दिया कि आयशा, उमर की सारी उमर एक तरफ। उमर की कौन उमर? जिसको मांगने के लिए मेरा पैगंबर हतीम काबा में रोता नजर आया। कौन उमर? जिसको मांगने के लिए मेरा पैगंबर काबे में दामन फैला के रब से मांगता नजर आए। कौन उमर? जो कलमा पढ़े तो फरिश्ते भी नारे तकबीर की सदा लगाते नजर आए। कौन उमर? जो कलमा पढ़े तो सहाबा भी जश्न मनाते नजर आए। कौन उमर? जो कलमा पढ़े तो नबी के चेहरे पे मुस्कुराहट बिखरती नजर आए। कौन उमर? जो कलमा पढ़े तो काबे का दर भी खुलता नजर आए। कौन उमर? जो कलमा पढ़े तो रब की चौखट पे
तौहीद के सजदे शुरू होते नजर आए। कौन उमर जो कलमा पढ़े तो पूरे मक्के में कोराम कुफर में बरपा नजर आए। कौन उमर जो नबी को शरीयत पर्दे का मशवरा दे, अल्लाह क़यामत तक शरीयत बनाता नजर आए। कौन उमर जो मकाम इब्राहिम पे नफल का इरादा करे, अल्लाह क़यामत तक हज का हिस्सा बनाता नजर आए। कौन उमर जो दरियाओं को चेक लिखे, दरिया हया करके बहते नजर आए। कौन उमर जो जंगल के दरिंदों को आर्डर दे, वो भी जंगल खाली करते नजर आए। कौन उमर जो आग को आर्डर करे, आग भी वापस जाती नजर आए। कौन उमर जिसके दौर में ज़लज़ला आए और वो दुर्रा जमीन पे मार के कहे, जमीन उमर के होते हुए तुझे कांपने की जुर्रत कैसे हुई। तारीख आज भी लिखती है 1400 साल गुजर गए, वो दुर्रा लगा, उसके बाद पूरी दुनिया में ज़लज़ले आए, मगर मदीने में आज तक नहीं आया। तकबीर, शाने सहाबा, शाने सहाबा। मेरे दोस्तों, मेरे बार उन्हें रहने फौत थी सुभान अल्लाह, पास कर ये बर्दाश्त कर। माशाअल्लाह। और अल्लाह से मैं कुछ जगह ही बदे मेरा कसूर था नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शाने रिसालत, शाने सहाबा, मौलाना याया बासी साहब। मेरे नहीं मेरा नाम ही आया है। उस्ताद उल असातिज़ा बैठे हैं हजरत। मैं अपने नारे क्या नहीं मरवेदा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं अपने नारे क्या नहीं मरवेदा, क्योंकि मेरा ना ही आया है। क्या आया था माना ही जिंदाबाद है। माशाअल्लाह। और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह गारंटी की थी बता कुरान जो नस कत्ती जो अल्लाह जहन्नम दा जिता जिक्र कीते ना वल उथे आखिरी तसला यमूतु फीहा वला यहया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शाने रिसालत, शाने मोहम्मद मुस्तफा, शाने सिद्दीक अकबर, शाने फारूक आजम, शाने उस्मान जिन्नूरैन, शाने अली इब्न अबी तालिब। मेरे दोस्तों माशाअल्लाह, अब थोड़े से जागे हो तो मैं मौजूद शुरू कर। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी तवज्जो रहे। कौन उमर, वाह वाह, सुभान अल्लाह, कौन उमर वाह वाह, जिसको मांगने के लिए हुजूर काबे में रोते नजर आए, जो जल्जले पे दुर्रा मारे, ऐसा दुर्रा असर करे 1400 साल गुजर गए, दुनिया में जल्जला आया, मदीने में नहीं आया। कौन उमर जो जमीन पे बोले, अल्लाह अर्श पे कुरान बनाता नजर आए। कौन उमर जिसके लिए पैगंबर कहे, उमर लौकाना बादी नबीयुल लकाना उमर, मेरे बाप नबूवत का दरवाजा बंद है, अगर खुला होता तेरे सर पे नबूवत का ताज आता। कौन उमर जिसके लिए पैगंबर कहे, उमर जिस गली से तू गुजरेगा शैतान कभी नहीं गुजरेगा। कौन उमर जिसके लिए पैगंबर कहे, उमर जब किसी का बाप मरे उसके बच्चे रोते हैं, जब किसी के बच्चे मरे उसका बाप रोता है, जिस दिन तू मरेगा मेरा इस्लाम रोएगा। नारे तकबीर, शाने रिसालत, शाने फारूक आजम, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, नारे तकबीर। उसी उमर के लिए वाह वाह, मैंने एक मुख्तसर सा नक्शा खींचा है, सैंपल दिया है। माशाअल्लाह, मैंने खुलासा कलाम मंबा मावा मलजा मेहवर मरकज दिया है, सिर्फ वाह वाह, सरापा दिया है। मैंने उस समंदर की लहर का एक कतरा दिया है कि कौन उमर, वाह वाह, उस उमर के लिए हाँ, पैगंबर ने क्या दिया, आयशा उमर की सारी उम्र एक तरफ, अल्लाह, तेरे बाप की एक रात का मुकाबला नहीं कर सकती। वाह वाह, आओ महमूद कोट वालों, मैं तुम्हें इस रात के तारे दिखाऊं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जीने बैठे हुए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिन्हें सवेरे टुक्करी घर खादा हुए सुभान अल्लाह। अल्लाह, सारे हिस्से जो मैं थके त्रुटे मुक्के रूठे भुखे अंदर। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह के पैगंबर ने आओ इस रात की सैर करें, इस रात के तारों की चमक को देखें, इस रात में घूमें, जरा झूमें, जरा ढूंढें इस रात में ऐसा हुआ क्या कि ये एक रात उमर जैसे उमर की सारी उम्र को क्रॉस कर गई। एक रात उमर जैसे उमर की सारी उम्र को क्रॉस कर गई। ये वो रात है जब मेरा पैगंबर अपने बिस्तर पे महवे istirahat है, असदुल्लाह अल गालिब, अबू तुराब
अबुल हसन वल हुसैन जन्नत के शहजादों के बाप शौहर ज़ारा गौहर काबा सुभान अल्लाह। जनाब सैयदना अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा, वो भी पैगंबर के साथ महवे इस्तराहत हैं। अचानक आधी रात का वक़्त है, गली में शोर आया। अली शेर खुदा कहते हैं, मैंने उठा और मैंने कान लगा के सुना कि बाहर शोर क्या है। तो अली शेर खुदा कहते हैं, मुझे आवाज आई मक्के के काफिर जमा है, कुरैश मक्का जमा है, कोटुद वाले नहीं, मक्के वाले कह रहे हैं। कुरैश मक्का जमा है और एक दूसरे से कह रहे हैं नऊज बिल्ला आज की रात मोहम्मद की आखिरी रात है। हजरत अली के कानों में जब ये आवाज आई तो अली शेर खुदा भागे और हुजूर को आके जगाया। हुजूर को बोल पड़ो, हुजूर को जगाया। मैं इसलिए इस लफ्ज पे जोर दे रहा हूं कि आगे चल के बताऊंगा ना कि एक ने जगाया और एक ने लोरियां दे के सुलाया। फिर आज मैं पहली दफा आपको फर्क भी बताऊंगा कि उसने सुलाया क्यों, उसने जगाया क्यों। कुछ जाहिल खतीब इल्म अमल से तईदस्त तईदामन कोरे ढोरे भोरे खतीब, वो तो यहाँ आके पता नहीं क्या इफरात तफरीत और मुबालगा आराई कर जाते हैं और अली शेर खुदा की शान में कमी कोताही दिखाते हैं। लेकिन आज मैं इस रात से पर्दा उठाऊंगा कि उसने जगाया क्यों था, उसने सुलाया क्यों था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर जागे, पूछा अली खैरियत क्या हुआ। अली शेर खुदा ने कहा अल्लाह के नबी खैर नहीं है। हुजूर ने फिर पूछा अली हुआ क्या, पूरी तवज्जो चाहूंगा, अली हुआ क्या। अली शेर खुदा ने कहा अल्लाह के नबी बाहर काफिर आपको मारने आए हैं। हुजूर ने फरमाया अली घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। अली शेर खुदा ने कहा अल्लाह के नबी वो कैसे, वो 100 से ज्यादा लोग हैं, तीरों तलवार नेजा बर्ची हर चीज उनके पास है, हम 2 लोग हैं, निहत्ते हैं, कोई असला नहीं है, कुछ नहीं है, वो तो हमें मारने आए हैं, हमारे पास दिफा के लिए कुछ नहीं है, कैसे कुछ नहीं होगा। हुजूर ने फरमाया अली घबराओ नहीं, मारने वाले अभी आए हैं, बचाने वाला पहले से खड़ा है। अली घबराओ नहीं, मारने वाले अभी आए, बचाने वाला पहले से खड़ा है। अली शेर खुदा ने कहा हुजूर क्या होगा, कैसे होगा। हुजूर अकरम ने कहा अली तमाशा तो देख, महमूद को उठवा लो, मेरे जुमले का दिल का कंप्यूटर में सेव करना, बड़ा मजा आएगा। हुजूर ने फरमाया अली तमाशा तो देख, मैं आज इनके साथ करता क्या हूँ। हुजूर क्या करेंगे। हुजूर ने फरमाया अभी मिट्टी उठाऊंगा, शातुल वजू पढ़ूंगा, इनके मुंह में डालूंगा और ऐसी डालूंगा कि डालूंगा आज रहेगी कयामत तक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान रिसालत, अज़मत कुरान, ये कुरान की अज़मत है, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान। अली देखो तो सही मैं इनके साथ करता क्या हूँ। हुजूर क्या करेंगे। फरमाया अभी मिट्टी उठाऊंगा, शातुल वजू पढ़ूंगा, इनके मुंह में डालूंगा, इनको ऐसा अंधा करूंगा कि डालूंगा आज रहेगी कयामत तक। अल्लाह क्यों कयामत तक। हदीस में आता है कयामत जब आएगी तो 10 मुहर्रम का दिन होगा। मिट्टी ढूंढ लेना किसके मुंह में नजर आता है। सुभान अल्लाह। डालूंगा आज रहेगी कयामत तक। हुजूर ने मिट्टी उठाई, शातुल वजू पढ़ी, यूं डाली, कुफ्र उस दिन से अंधा हुआ, आज तक अंधा है। ना उस दिन हक नजर आया, ना आज तक हक नजर आया। हुजूर दरमियान से गुजर गए। कुछ देर के बाद अबू जाल एंड कंपनी अंदर घुसे और हुजूर जब जाने लगे, पूरी तवज्जो, हुजूर जब जाने लगे तो हजरत अली शेर खुदा को सारा शेड्यूल, सारा रूट, सारा प्लान अपना बता दिया। अली मैं यहां से वहां जाऊंगा, वहां से उसको लेकर वहां जाऊंगा, फिर वहां से इतने दिन के बाद वहां जाऊंगा। अली ये मक्के वालों की अमानतें पड़ी हैं, ये सुबह उठना, अमानतें उन लोगों के सपुर्द करना और तू भी फिर हमारे पीछे पीछे वहां आ जाना। मतलब क्या निकला, हुजूर ने हजरत अली को सारा शेड्यूल, सारा रूट, सारा प्लान बता दिया था। क्यों, हुजूर को एतमाद था कि अली जान दे सकता है लेकिन नबूवत का राज नहीं दे सकता। अब हुजूर ये सारा रूट बता के चल दिए दरे सिद्दीक पर और थोड़ी देर के बाद अबू जाल एंड कंपनी
हुजूर के घर में दीवार फलांग के घुसे, अंदर गए, हुजूर की चारपाई के करीब, महमूद कोट वालों एक और जुमला देने चला हूं। मेरी तकरीर में अतर के चंद कतरे होते हैं, मेरे पास पत्थरों के पहाड़ नहीं, मेरे पास लंबी चौड़ी तकरीरें नहीं, मेरे पास जुपे कुपे नहीं। मैं छोटा सा आदमी हूं और छोटी छोटी बातें करता हूं, लेकिन उनको खोलोगे तो वो बड़ी मोटी मोटी बातें निकलेंगी। अब अबू जहल एंड कंपनी अंदर घुसे, तो जो मेरी तरफ, अबू जहल एंड कंपनी अंदर घुसे, अंदर गए, हुजूर की चारपाई के सामने जाके खड़े हो गए और सोचा कि शायद ये अल्लाह का नबी सोया हुआ है। और करीब जाकर अबू जहल ने कहा, कौम या मोहम्मद, ए मोहम्मद उठो। उसने समझा कि ये नबी है, लेकिन जब चादर हटाई तो पता चला ये नबी नहीं, ये तो अली है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली। चादर हटाई, चादर हटाई तो देखा आगे अली है। मैं जुमला देने चला हूं इस मकाम पर कि ये बात भी वाज़े हो गई, पूरी तवज्जो अहले ज़ौक़ से। ये बात भी 1400 साल पहले वाज़े हो गई। जिसने सबसे पहले अली को नबी समझा वो अबू जहल था। दूसरा कुछ अल्लाह करे मेरी गाल सुनो, या तो मैं टक के बैठा धार धार करने दे आवे कई ज़माने पता लगे तारे पीछ दा साकू गद्दार से दे दो। तवज्जो है माशाअल्लाह। 1400 साल पहले बात वाज़े हो गई कि जिसने सबसे पहले अली को नबी समझा था वो अबू जहल था। तो फिर मैं क्यों ना कहूं, ये बात तो 1400 साल पहले वाज़े हो गई कि आज भी अगर कोई अली को नबी समझेगा वो अबू जहल की ज़ुर्रियत तो हो सकता है, नबी का उम्मती नहीं हो सकता। अब जब अबू जहल ने देखा कि सामने अली है, मैं समझ रहा था नबी है लेकिन वो तो अली है। अबू जहल के पाँव से जमीन निकली, लर्ज़ा बरंदाम हुआ, पाँव मुतज़ल्ज़िल हुए, अर्क में गर्क हुआ, हैरान परेशान सरगर्दान पशेमान अंगोश बदंदान हुआ और पूछने लगा, अली नबी कहाँ गए? अली नबी कहाँ गए? अली ने ये नहीं कहा मुझे पता नहीं। क्यों? अली को पता था, हुजूर सारा रूट बता के गए थे। अली मैं यहाँ से वहां जाऊंगा, उसको लेके फिर वहां जाऊंगा, फिर वहां से वहां जाऊंगा। तो अली ये नहीं कह सकते थे कि पता नहीं। क्यों? पता था। अली जान दे सकता है लेकिन न झूठ बोल सकता है न तकिया कर सकता है। अली ने ये नहीं कहा पता नहीं। क्यों? पता था। अबू जहल ने पूछा, अली नबी कहाँ गए? अली ने कहा वो तो चले गए। वो तो अलाउ है, अलाउ, वो तो चले गए। अबू जहल ने फिर पूछा कहाँ चले गए? अली ने कहा जहां जाना था। अबू जहल ने पूछा, अली नबी कहाँ गए? अली ने कहा चले गए। उसने पूछा कहाँ चले गए? अली ने कहा जहां जाना था। उसने फिर पूछा कहाँ जाना था? अली ने कहा जहां चले गए। अबू जहल को उल्लू का पट्टा बना दिया मगर नबूवत का राज नहीं दिया। इसको कहते हैं अली का इल्म, अली का हिल्म, अली का तदब्बर, अली की फरासत, अली की हिकमत, अली की बसीरत, अली का फहम, अली की अकलमंदी, अली की दूरअंदेशी, अली की सदाकत, अली की दयानत, अली की अमानत, अली की शराफत, अली की नबी से मोहब्बत, अली से मुरफ़्फ़त, अली का नबी से इश्क, अली से नबी की चाहत। इसको कहते हैं कि अबू जहल को यह भी नहीं कहा कि मुझे पता नहीं और नबूवत का राज भी नहीं बताया। जब अबू जहल को अली ने उल्लू का पट्टा बना दिया और नबूवत का राज भी नहीं दिया, तो अब अबू जहल अपने दोस्तों से कहता है, फिर एक जुमला देने चला हूं, दोस्तों से कहता है, आओ मक्का वालों, ये नहीं बताएगा, ये नहीं बताएगा, आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि आज नबी कहां होगा। मक्का वालों ये नहीं बताएगा, आओ आज मैं तुम्हें बताता हूं कि नबी कहां होगा। अबू जहल के लफ्ज सुन, तुझे सिद्दीक अकबर की अजमत का पता चले। अबू जहल ने कहा, मक्का वालों
मेरा दिल गवाही देता है, अबू जाल कह रहा है, मक्का वालों मेरा दिल गवाही देता है कि मक्के की धरती पर अबू बकर से बड़ा यार मोहम्मद का कोई नहीं। आज की रात अगर मोहम्मद गया होगा तो दरे सिद्दीक पे गया होगा, तो मैं क्यों ना कहूं ये फैसला भी 1400 साल पहले हो गया कि अबू जाल भी अबू बकर को नबी का सच्चा यार मानता था। आज अगर कोई कज़्ज़ाब व दज्जाल अबू बकर को नबी का सच्चा यार ना माने, वो कफ्र में, दजल में, फरेब में, शैतानत में, बग़्ज़ में, अदावत में, दुश्मनी में अबू जाल का भी बाप निकला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, शान सिद्दीक अकबर, शान सिद्दीक अकबर, नारे तकबीर। तो हुजूर दरे सिद्दीक पे, हुजूर दरे सिद्दीक पे पहुंचे, दस्तक दी, अबू बकर बाहर आए, सामने देखा, चौदवी के चांद से ज्यादा चमकता हुआ चेहरा नजर आया। अबू बकर की आंखों से आंसू छलक पड़े और अर्ज किया, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, ये क्या आधी रात को आप चलकर मेरे दरवाजे पर, हुजूर कोई अगर हुक्म था, काम था, कोई मैसेज, पैगाम, एलची, नुमाइंदा, कासिद मुझे भेजते, मैं सर के बल चल के आता, हुजूर आपने क्यों तकलीफ की? पैगंबर का जवाब सुन, तेरा ईमान ताजा हो। पैगंबर ने कहा, अबू बकर तुझे पता नहीं, मैं अपनी मर्जी का मालिक नहीं, मैं तो किसी का पाबंद हूँ। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मैं तो उसका पाबंद हूँ, जैसे जैसे वो कहता जाता है वैसे वैसे मैं करता जाता हूँ। अबू बकर आज मुझे आर्डर ही नहीं था कि तुझे बुलाऊं, मुझे आर्डर था कि मैं खुद चल के आऊं। क्यों? कि जब कोई बड़ा आदमी किसी छोटे के दर पे चला जाए ना, तो उस छोटे की इज्जत बढ़ जाती है। तेरे मेरे दर पे कोई एमपी, एमएनए, वजीर, मुशीर, गवर्नर, वजीर आला, वजीर आजम आ जाए तो कितना इज्जत बढ़ती है इलाके में, पता चलता है इसके ताल्लुकात बड़े हाई हैं। हाँ, तो अल्लाह ने कहा, अबू बकर मैं तेरे दर पे उसको भेजूंगा जिससे बड़ा कायनात में है ही कोई। अब हुजूर सामने है, सिद्दीक अकबर ने कहा, अल्लाह के नबी पूरी तवज्जो, आखिरी चंद जुमलों की तरफ तुम्हें लेके चलना चाहता हूं। हुजूर हुक्म, कैसे आना हुआ? हुजूर ने फरमाया, अबू बकर दुश्मन पीछे है, चलो चलना है, चलो चलो चलो, गूंगे भी बोल पड़ो, चलो चलना है। जाओ तारीख की किताबों में वरक गर्दानी करके देखो और आप पलट के देखो, आइमा सियर को पढ़ के देखो। सिद्दीक अकबर को जब अल्लाह के पैगंबर ने कहा ना, अबू बकर चलो चलना है, तो तारीख की कोई किताब नहीं लिखती कि अबू बकर ने कोई आर्गुमेंट किया हो, कोई बासो तमीज की हो, कोई जुमला कहा हो या कहा हो, एक्सक्यूज किया हो, माजरत की हो कि हुजूर अब आधी रात को कैसे चलें, हुजूर घर अकेला है कैसे चलें, हुजूर बूढ़े माँ बाप है कैसे छोड़ूं, हुजूर छोटी छोटी बच्चियां हैं कैसे छोड़ूं, हुजूर कारोबार, तिजारत, कपड़े का काम है कैसे छोड़ूं। एक जुमला भी अबू बकर ने नहीं कहा। पैगंबर ने कहा, अबू बकर चलना है, अबू बकर खामोशी से चल पड़ा। और चलते 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 हुजूर ने कहा, अबू बकर जरा तेज चलो, दुश्मन पीछे है, गार तक पहुंचना है। तेज चलने लगे, थोड़ी देर गुजरी, सिद्दीक अकबर ने कहा, अल्लाह के नबी जरा 1 मिनट रोक के मेरी बात तो सुने। हुजूर ने मुस्कुराकर कहा, अबू बकर अभी तुझे मैंने कहा है तेज चल, दुश्मन पीछे है, तू कहता है मैं तेरी रोक के बात सुनूं। अबू बकर चलता भी जा, बात करता भी जा, मैं सुन लूंगा। सिद्दीक अकबर ने कहा, अल्लाह के नबी 1 मिनट रुक जाए, नहीं तो मेरी जान निकल जाएगी। हुजूर रुके और रोक के पूछा, अबू बकर ऐसा क्या हुआ कि तेरी जान निकलने लग गई? क्या घर बार याद आया, बीवी बच्चे, कारोबार, माँ बाप याद आए? सिद्दीक ने कहा, अल्लाह के नबी कोई याद नहीं आया, मुझे टेंशन, मुझे फिक्र तो यह है कि आपके कदमों के निशानों पर लहू के कतरे नजर आ रहे हैं और आपके पांव से लहू निकले, मैं आपको पैदल चलने दूं, मेरी जान निकल जाएगी। हुजूर मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह
के बंदे, अब आधी रात को मैं सवारी कहां से लाऊं? पैदल चलना मजबूरी है, पीछे दुश्मन है, लंबा सफर है, तो सवारी नहीं पैदल चलना पड़ेगा। अबू बकर ने कहा अल्लाह के नबी सवारी नहीं तो क्या हुआ, मैं आपको पैदल नहीं चलने दूंगा। आज अबू बकर के बूढ़े कंधे मोहम्मद की सवारी बनेंगे। नारे तकबीर, अज़मत मोहम्मद मुस्तफा, शान सिद्दीक़ अकबर, मोहब्बत सिद्दीक़ अकबर, वफाए सिद्दीक़ अकबर। नारे तकबीर। सिद्दीक बैठे, हुजूर को कंधों पे सवार किया और उठा के उठ चल पड़े, उठा के चल पड़े। इससे भी अगला जुमला कहा करता हूं कि उठा के दौड़ पड़े। अभी तक भी 98% लोग नहीं बोले। एक अगला जुमला कह रहा हूं, फिर देखूंगा किसकी जुबान खामोश होती है। अबू बकर ने नबूवत को कंधों पे उठाया और उठा के उड़ पड़ा। ये मैं अपने ज़ौक़ का जुमला कहता हूं कि उठा के उड़ पड़ा। क्यों? मैंने तो तारीख के झरोकों में झांक के देखा है, मेरे नबी ने जिस सवारी पे सवारी की है ना, वो सवारी फिर चली नहीं, वो उड़ने लगी। मेरा नबी हलीमा की बीमार ऊंटनी पे बैठा, जो आते हुए चल नहीं सकती थी, जाते हुए उड़ के जा रही थी। मेरे नबी ने बुराक पे कदम रखा, उड़ने लग गई। मेरे नबी ने अबू बकर के कंधों पे कदम रखा, अबू बकर भी उड़ने लग गए। और मैं क्या करता हूं कि बगैर उड़े, ये मेरे एक ज़ौक़ के जुमले हैं, बगैर उड़े ये सफर मुमकिन ही नहीं था। क्यों? कि गारे हिरा, गारे सौर कितना ऊंची, 3 मील लंबी पहाड़ी। तो जो कई लोग हैं जुमरे ते गए हुसैन गयो या कट्ठी कराने दे चक्कर जाओ, अक्सर 99 दे चक्कर है जन्नत। आप में से बहुत सारे लोग हज पे उम्रे पे बार बार गए होंगे। आपने वहां मंजर देखा, बिलावई से टपड़ी को आपने ये मंजर देखा होगा। पूरी तवज्जो, मैं बात को वाइंड अप करने चला हूं। मैं बदज़ौक़ी बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरा एक मिजाज है, मैं दिल से बोलता हूं, दिल में उतारता हूं। मैं वो वेले वाला मुल्ला तो हाँ कहना जो वेली बोलिए होते सुनो ना सुनो। इसलिए पूरी तवज्जो कि वहां जब जाते हैं ना, ज़ियारत वाले लेके नीचे गाड़ी से जब उतरते हैं ना, तो अध्ययन की फूक तो उठे ही निकल वेंदी है। हाँ ये बड़ी पर ऐसी ऐसा नहीं चढ़ सकते। अच्छा बस ही हम खड़ते देख गीते से बस सब ठीक है सही। मैं गिट्टियां दा मरीज हाँ, मैं गोडियां दा मरीज हाँ, मैं ब्लड दा मरीज हाँ, मैं हार्ट दा मरीज हाँ, मैं शुगर दा मरीज हाँ, मैं ब्लड प्रेशर दा मरीज हाँ। मैं नहीं बच सकता सी, तुसा थी हो मैं थी इंतजार करे सा। इवें आदन क्या ना आधी लोग। मुझे अल्लाह 50 दफा उम्रे पे ले गया, 15 दफा हज पे ले गया, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 65 दफा अल्लाह के घर का सफर कर चुका हूँ, लेकिन मैं भी 3 दफा सिर्फ गार में गया हूँ। हर दफा नहीं जा सकता। हाँ क्यों? कि आदमी थक जाता है, पहाड़ का सफर है, ऑक्सीजन कम है, पथरीले और नोकदार रास्ते हैं। हाँ फिर भी जब जाते हैं ना, नीचे बकाले से मिनरल वाटर लेते हैं, जूस लेते हैं, फ्रूट लेते हैं, खजूर लेते हैं, और 2-4 दोस्तों की कंपनी बना के जाते हैं। आओ यार खाते पीते चलेंगे, उठते बैठते चलेंगे, कभी तो पहुंच जाएंगे। अबू बकर मैं तेरी वफा पे, अदा पे, हया पे करोड़ों जाने कुर्बान कर दूं, तू अकेला नहीं। नबुव्वत का बोझ कंधों पर और एक सांस में 3 मील लंबी पहाड़ी पर चढ़ गया और गार पे जाकर सांस ली। तो फिर मैं क्यों ना कहूं, अबू बकर नबुव्वत को उठा के चला नहीं, दौड़ा नहीं, उड़ पड़ा। और अल्लाह ने उड़ा के वहां पहुंचा, वहां पहुंचाया। तारीख के कुछ तालिब इल्म बैठे होंगे, अहले ज़ौक़ अहले मुताला बैठे होंगे। एक और भी वाक़या है फतह मक्का का। जब मक्का फतह हुआ ना, हुजूर अकरम ने सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी को बुलाया और कहा आओ बैठो, मैं नाम नहीं लेता बहस छिड़ जाएगी, आओ बैठो, मैं बैठता हूँ तो मेरे कंधों पे सवार हो जाओ। हाँ मेरे ख्याल आओ मैं बैठता हूँ, इन्हें के शत नमाज पढ़नी कहनी, मैं बैठता हूँ तो मेरे कंधों पे बैठो। पूरी तवज्जो, मैं दोनों जुत्ती पहनदा पे यार सारे उड़ी देख सरी हो। मौलाना अब्दुल शकूर दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह आदन जट्टो बात न पट्टो खोपड़ी कोई गाल नहीं सकतो। वो दौर बदे आज तक 2020 आ गए, दौर 1960 ला। सिद्दीक़ अकबर ने
हुजूर ने बुलाया साहबी रसूल को, आओ मैं बैठता हूँ, तुम मेरे कंधों पे चढ़ो, मैं खड़ा हूँगा। काबे के अंदर जो बुत ऊपर खड़े हैं या तस्वीरें बनी है ना, ये लकड़ी के साथ इनको तोड़ो और इनको मिटाओ। तो साहबी रसूल ने कहा, अल्लाह के नबी, मेरी अदब ये तकाजा नहीं करता कि मेरे कदम आपके कंधों पर आए। हुजूर ऐसा नहीं हो सकता, मैं बैठता हूँ, आप मेरे ऊपर आए, मैं खड़ा हूँगा, आप बुतों को मिटाना। हुजूर ने फरमाया, आओ मैं खड़ा हो जाता हूँ। साहबी बैठे, हुजूर ऊपर चढ़े और फिर कहा, उठो। फिर कहा, उठो। तारीख आज भी सोने के पानी से लिखती है, वो साहबी जोर लगा लगा के थक गए मगर नबी को उठा के उठ ना सका। मैं सिद्दीक की अजमत पे कुर्बान क्यों ना हूं, वो उठा के उठ ना सका, सिद्दीक उठा के पहाड़ों पे चढ़ गया। जब वो साहबी हुजूर को ना उठा सके ना, हुजूर ने एक जुमला कहा, दिल के कंप्यूटर में सेव कर लो। हुजूर ने कहा, नबूवत का बोझ उठाना हर किसी के बस का रोग नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, जिसको सिद्दीक जाते खुदा ने कहा और सिद्दीक ही मुस्तफा ने कहा। अब हुजूर और सिद्दीक पहुंचे। अब मैं वो जुमला आपकी नजर करने चला हूं आखिरी चंद मिनटों में, कि मैंने जो इस रात पे गौर किया ना, कि ये रात इतना कीमती बनी क्यों कि उमर जैसे उमर की सारी उम्र को क्रॉस कर गई। मुझे जो अर्करेजी से जुमला मिला, मैं वो जुमला आपकी नजर करने चला हूं कि मुझे इसमें कीमती जुमला कौन सा मिला जो रब को बड़ा पसंद आया और अल्लाह ने इस रात की कीमत इतनी लगा दी कि उमर की सारी उम्र से भी आगे निकल गई। वो जुमला क्या था? जब सिद्दीक ने नबूवत को उठाया और गार के दहाने पे पहुंचाया, हुजूर को कंधों से उतारा। पूरी तवज्जो, आखिरी जुमला देने चला हूं। हुजूर को कंधों से उतारा और उतार के हक बनता था। अबू बकर कहता, हुजूर मैं बूढ़ा आदमी था और नबूवत का बोझ कंधों पे था, पहाड़ की चढ़ाई थी, ऑक्सीजन कम था, नोकदार पत्थर थे, टेढ़े टेढ़े रास्ते थे। हुजूर थक गया हूं, इजाजत हो 2 मिनट आराम कर लूं, इजाजत हो 2 मिनट सांस ले लूं, इजाजत हो 2 मिनट कमर सीधी कर लूं, इजाजत हो 2 मिनट पानी पी लूं। लेकिन नहीं, अबू बकर ने ऐसा कोई जुमला नहीं कहा, बल्कि उल्टा कहा, हुजूर आप थक गए होंगे, मैं अंदर बिस्तर बनाता हूं, आप आके आराम करें। हक बनता था थकना अबू बकर का, लेकिन वो नहीं थका। उल्टा कंधे वाले से कहा, आका आप थक गए होंगे, मैं बिस्तर बनाता हूं, आप आराम करें। ये जुमला रब को इतना पसंद आया कि अल्लाह ने अबू बकर की ऐसे एक रात को उमर की सारी उम्र पे भारी कर दिया। नारे तकबीर, शान सिद्दीक अकबर, वफा का पैकर अबू बकर, अबू बकर वफा का पैकर, वफा के पैकर। नारे तकबीर। अब हुजूर उतरे, लंबा उन्वान था। मैंने कोशिश की कि मैं 1 घंटे में खत्म करूँ, हालांकि ये 3 घंटे का उन्वान है। तो हुजूर ने कंधे से उतारा और कहा, हुजूर आप थक गए होंगे, मैं अंदर जाके आपके लिए बिस्तर बनाता हूँ, आप आके आराम करें। हुजूर ने फिर मुस्कुरा कर कहा, अबू बकर बिस्तर तो हम लेके नहीं आए, बिस्तर कहां से लाओगे? सिद्दीक ने फिर मुस्कुरा कर कहा, आका सवारी नहीं थी, अबू बकर के कंधे सवारी बन गए। बिस्तर नहीं है तो क्या हुआ, आज अबू बकर की झोली मोहम्मद का बिस्तर। हुजूर ने फरमाया, चलो फिर अंदर चले। अबू बकर ने कहा, अल्लाह के नबी नहीं, आप रुके, पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा। हुजूर ने कहा, वो क्यों? सिद्दीक ने कहा होगा, अल्लाह के नबी तू सब बाहर खड़ो, पहले मैं अंदर वैसा। सुना क्यों? मत्तन पियंदा काला नीला पीला सावा रत्ता गाला भोला छित्ता क्या होवे मर न वञो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मत्तन कोई प्या होवे दुश्मन, काला सांप बिच्छू कीड़ा मकोड़ा हशरातुल अर्श, वो मुझे डसे आप तक न पहुंचे। पहले जाऊंगा, झाड़ू दूंगा,
सफाई करूंगा। हुजूर ने फिर पूछा, अबू बकर झाड़ू तो लेके नहीं आएंगे, झाड़ू कहां से लाओगे? सिद्दीक ने फिर मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह के नबी क्या हुआ? अगर सवारी नहीं थी, अबू बकर के कंधे सवारी बन गए, बिस्तर नहीं है, सिद्दीक की झोली बिस्तर बनेगी, झाड़ू नहीं है तो क्या हुआ? आज अबू बकर की पगड़ी मोहम्मद का झाड़ू बने। इसलिए तो मैंने कहा जो कुछ तला के धर दिया। सिद्दीक हर शह लुटाई वदे वलावी को टीवी ते बैठे अबू बकर ते तबर्रा करे। अब सिद्दीक अंदर गए, सफाई की, सुराखों को बंद किया, काले वाले सुराख पे एड़ी रखी और झोली फैलाई, हुजूर को बुलाया, हुजूर आए और आके सो गए। आके सो गए। आखिरी 3 मिनट आपके लेने चला हूं खुलासा कलाम के तौर पर। हुजूर आए और आके सो गए। अब झोली सदाकत की है, पूरी तवज्जो चाहूंगा, झोली सदाकत की है और सर नबूवत का है। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी कहते थे मंजर ऐसे था जैसे रहल में कुरान होता है। झोली सदाकत की है, सर नबूवत का है। हुजूर आए और आकर सो गए। अब आले ज़ौक़ से एक सवाल पूछना चाहता हूं, जरा सोच के जवाब देना। अब झोली सदाकत की थी, सर नबूवत का था, ईमान से बताओ दरमियान में कोई फासला था? सारे बोलो, कोई फासला था? बिला फासल। सुभान अल्लाह। मंजर अल्लाह ने दिखाया बिला फसल। अब जब मंजर बिला फसल का बना तो काला तड़पने भड़कने लड़कने लग गया। काले का जहर उबला, काले ने अपने मुंह से गंद निकालना शुरू किया और उसने देखा कि कयामत तक झगड़ा तो इसी बिला फसल पे है। मैं जाऊं और डसूं और इसको जुदा करके फासला पैदा करूं ताकि कह सकूं बिला फसल नहीं फासला था। आगे भी अबू बकर था, काला डसता रहा, अबू बकर हंसता रहा। काला सांप डस के थक गया, अबू बकर सह के नहीं थका। काला डस के भाग गया, अबू बकर आज भी रोजे में साथ है। हाँ? अब सिद्दीक अकबर ने अपना पांव गार से सुराख से हटाया था। सारे बोलो, हटाया था। हटाना भी बड़ा जुमला है, मैं अपने ज़ौक़ का एक बारीक जुमला कहा करता हूँ। अबू बकर ने पांव हिलाया था, हटाना तो दूर की बात, अबू बकर ने पांव हिलाया ही नहीं। क्यों? पता था कि अगर पांव हिलता है टांग हिलती है, टांग हिलती है नबी की आंख खुलती है, आंख खुलती है नबी का आराम जाता है। अबू बकर तहिया कर चुका था, जान जाती है तो जाए पर मोहम्मद का आराम न जाए। अब सिद्दीक ने जब पांव न हटाया न हिलाया, जहर का काम है कि सांप का जहर सरायत करता है। सांप चाहे काला हो या पीला, नीला हो या गदरा, छित्ता हो या लूसी, उसका काम यह है कि जब वो डसे तो उसका जहर ऊपर चढ़ता है, सरायत करता है। सियाने लोग बैठे जब कई को नांग डंग मारे ना अदनिया फौरन कास्ते उते पट्टी चा बधो मतन जार उते चढ़ वने ते जार को चूस गिनो। अबू बकर पट्टी बधी है नहीं, अबू बकर जार चूसिया नहीं, अबू बकर तो पैर ही नहीं हिलाया, जो मतन सोने दी आंख खोल वने। हाँ, अब वो जहर चला एड़ी से पिंडली में, पिंडली से रानों में, रानों से पेट में, पेट से जिगर में, जिगर से हलक में, हलक से दिमाग में। जब पूरे जिस्म में जहर ने सर्कुलेट कर लिया तो अबू बकर पे जहर का असर हुआ। अबू बकर का सर चकराया, माथे पे पसीना भी आया और आंखों से पानी भी बहने लग गया। और वो पानी न बहता, वो भी अबू बकर न बहने देता, लेकिन अबू बकर क्या करता? रब ने बहाना बनाना था और अबू बकर का पानी गिराना था, नबी के रुखसारों पे पहुंचाना था, नबी की आंख को खुलवाना था, अबू बकर की वफा को दिखाना था। अब वो पानी के कतरे टपके सीधा रुखसारे नबूवत पर। हुजूर ने आंख खोली, पूछा अबू बकर खैरियत, क्या हुआ? सिद्दीक अकबर ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह के नबी बस कुछ नहीं, वो बिला फसल का नक्शा बन गया था ना, तो काले को तकलीफ शुरू हो गई, काले साहब ने आके मुझे डसना शुरू कर दिया। हाँ, हुजूर ने कहा अबू बकर अच्छा मेरे होते हुए तुझे काला डसे, मेरे होते हुए तुझे काला भौंके, इधर ला एड़ी। अबू बकर ने एड़ी आगे की, हुजूर ने अपने बाएं हाथ की हथेली पर एड़ी रखी,
اور دائیں ہاتھ سے شہادت والی انگلی سے لعاب دہن لگایا اور ایڑی پہ ہلکا سا مسل دیا اور پھر پوچھا ابو بکر اب بتاؤ کیا حال ہے؟ صدیق نے کہا اللہ کے نبی لگتا ہے کالے کی محنت برباد ہو کالے صاحب کی محنت برباد ہو گئی۔ اب اسی مقام پہ میں خلاصہ نکالا کرتا ہوں آخری 1 منٹ کا کہ گھر جا کے سوچنا یہی لعاب دہن جو آج ابو بکر کی ایڑی پہ لگا علی کی آنکھوں پہ لگا تھا، خلاصہ میں نکال دیتا ہوں، سوچنا گھر جا کے آنکھیں انسان کی انتہا ہے، ایڑی انسان کی ابتدا ہے، جو مقام علی کی انتہا کو چھوا اسی مقام نے ابو بکر کی ابتدا کو چھوا، جہاں وہ ختم ہو رہا تھا وہاں یہ شروع ہو رہا تھا۔ یہی تو وجہ ہے حضور نے شہادت والی انگلی سے میں لمبی تفصیل میں نہیں جاتا وقت نہیں ہے، شہادت والی انگلی سے، شہادت مانا پہلی کچی کہنا پڑیا، شہادت مانا گواہی، گواہی والی انگلی سے حضور نے لعاب لگا کر وہ تو نوٹھا لے دی، حضور شہادت علی انگل لئیے، شہادت والی انگلی سے حضور نے علی کی انتہا پہ لعاب کا نشان لگایا، ابو بکر کی ابتدا میں لعاب کا نشان لگا کر دنیا کو بتا دیا کہ وہاں مقام انتہا کو ہے، یہاں مقام ابتدا کو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علی شیر خدا کو خلافت انتہا میں ملی، ابو بکر کو خلافت ابتدا میں ملی۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی اور صحابہ سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ آخر میں وہی کہتا ہوں وسعت دل ہے بہت، وسعت سارا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے، اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی، ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔